So today's topic for revision is soil erosion and soil conservation from lesson 1. This is given on page number 11. Right? You can open your book also. The topic is soil erosion and soil conservation from lesson 1. Lesson 1 is the resource and development. So start from here. The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. Denudation means wearing away of soil, coming out of the soil particles. It is known as denudation. The denudation of the soil cover and subsequent washing down. How washing down is possible? Washing down is possible by the natural agents like rainwater or streams of water or force of wind. All these are the agents which wash away the soil or blow away the soil from its original place. So read this line again. The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. So from here you have to answer the first question. What is soil erosion? Write this question. What is soil erosion? And the answer is the denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. Process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is balance between the two. That means the process of soil formation and the process of soil erosion both go hand in hand, है ना, दोनों ही चलते रहते हैं. सॉइल का फॉर्मेशन भी होता रहता है, सॉइल का इरोजन भी होता रहता है. And now depends that which is faster. If the rate of erosion is faster, that is dangerous for the soil. But if both are going in a natural manner, then it's okay. Formation and erosion. Sometimes this balance is disturbed due to human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining activity. While natural forces like wind, glacier, water lead to soil erosion. Now what are you seeing here in these lines? These lines describe that there are two broad causes of soil erosion. One is the natural and the other is the man-made. So you can write a question here. What are the two causes of soil erosion? What are the causes of soil erosion? Write a question. What are the causes of soil erosion? The answer is there are two broad causes of soil erosion. First category is natural factors. या natural forces. पहला broad factor क्या है बताओ? Natural forces. अब natural forces के अंदर तुमको action of wind and water. हाँ बोलो. Wind action. Action of wind and water. हाँ, तो जब पहला हेडिंग क्या लिखोगे रीजन में कि नेचुरल फोर्सेस. अब नेचुरल फोर्सेस में लिखो एक्शन ऑफ विंड, ग्लेशियर, वाटर, है ना, ये सब लिखो. Wind action is very common in arid and semi-arid areas. Arid और semi-arid areas समझते हो जो कि dry land है, जैसे western राजस्थान and parts of हरियाणा, या जहाँ पे vegetation cover बहुत कम है और wind blow करने की वजह से soil particle भी वहाँ से blown away हो जाते हैं. मतलब soil particles भी वहाँ से निकल जाते हैं wind के speed के साथ, तो उसको विंड इरोजन कहते हैं. ठीक है. तो ग्लेशियर का वर्क हर जगह नहीं होगा. कहाँ पे होगा? हायर अल्टीट्यूड में. जहाँ पर ग्लेशियर है वो ग्लेशियर भी सॉइल इरोजन का काम करते हैं, तो ये हमेशा हायर अल्टीट्यूड में होगा. विंड का वर्क कहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा, कहाँ पे डोमिनेंट होगा? जो सेमी एरिड एंड एरिड एरियाज नहीं होगा. जैसे हम लोग के स्टेट में बिहार में देखो कि यहाँ पे नहीं होता है, विंड इरोजन इतना प्रोमिनेंट नहीं है. यहाँ पे वाटर इरोजन ज्यादा प्रोमिनेंट है. बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब स्टेट्स में
कौन सा इरोजन ज्यादा कॉमन है, बोलो? Water erosion. जो कि रिवर वाटर हो सकता है, रेनफॉल की वजह से बहुत सारे स्ट्रीम्स तैयार हो जाते हैं जो कि सॉइल का इरोजन करते हैं। तो नेचुरल फोर्सेस में क्या क्या लिख लिए? वर्क ऑफ विंड, ग्लेशियर, वाटर, और And भी होता है, water. हाँ और भी है, लिखा हुआ है। हाँ, सी वेव्स कोस्टल एरिया में बहुत एक्टिव होते हैं। सी वेव्स की वजह से कोस्टल एरिया में सॉइल इरोजन होता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा ना, विंड, ग्लेशियर, वाटर, सी वेव्स भी ऐड कर सकते हो, अंडरग्राउंड वाटर का भी वर्क होता है, तो कई सारे नेचुरल एजेंट होते हैं। अब दूसरा ब्रॉड रीजन जो लिखेंगे वो क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी। जी। तो ह्यूमन एक्टिविटी में क्या क्या लिखोगे? डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग बाय Mining. है ना, एनिमल्स हम ही लोग छोड़ते हैं लैंड के ऊपर, तो डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग वर्क। सो ऑल दीज आर human activities which cause damage to the soil. Deforestation, अब डिफॉरेस्टेशन के अगर डिटेल में हम जाएं तो अगर फॉरेस्ट कवर हट जाता है सॉइल के ऊपर से तो क्या होता है कि द सॉइल बिकम्स एक्सपोज्ड and which is more prone to erosion because it is exposed to rainfall, it is exposed to water, so there is lot of erosion due to deforestation. Overgrazing also does the same function. Due to overgrazing, the upper layer of the vegetation like grass etc are destroyed and then the soil becomes exposed. Construction and mining activity also damages the soil a lot. Okay? Due to mining process, the land is excavated, the particles of minerals come on the surface and the forest cover is damaged due to mining. So all these causes lead to soil erosion. So now are you clear? Will you write these two broad reasons? One is the Yes, sir. the other is the Natural factor. Human action. natural forces and human activities. और इन दोनों कैटेगरी में तुम अपना ये सारा एग्जांपल ये देना कि क्या क्या रीजन है। नेचुरल में कौन कौन से फैक्टर हैं? विंड, ग्लेशियर, वाटर, सी वेव्स, अंडरग्राउंड वाटर एक्सेट्रा। एंड इन human activities, deforestation, overgrazing, construction, mining, Construction and है ना। इसमें और भी लिख सकते हैं जैसे ओवर इरिगेशन भी एक होता है। ह्यूमन बींग्स और क्या करते हैं? ओवर इरिगेशन करके भी सॉइल को डैमेज करते हैं। अच्छा, फिर हम लोग आगे बढ़े इसमें। अच्छा, तो यहाँ देखो अब हम लोग देखेंगे कि कौन से दो ब्रॉड टाइप्स हैं सॉइल इरोजन के। टाइप्स अभी तो कॉजेज पढ़ रहे थे कि कॉजेज क्या है, अब हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स पढ़ना है। हाँ, यहाँ देखो, the running water cuts through the clayey soil and makes deep channel as gullies. सॉइल इरोजन दो तरह से होता है, gully erosion and sheet erosion. गली इरोजन है, शीट इरोजन। यहाँ Sheet देखो erosion. दूसरा है शीट इरोजन। सेकंड कॉलम में देखो नंबर 2 शीट इरोजन एंड नंबर 1 इज गली इरोजन। मतलब सॉइल इरोजन जब होने लगता है तो उसके दो डिफरेंट प्रोसेस क्या होते हैं, एक को कहते हैं गली इरोजन और दूसरे को कहते हैं शीट इरोजन। तो वेयर इज द गली इरोजन मोर कॉमन? गली इरोजन इज In मोर coastal areas. no Chambal Basin in India. Chambal Basin in India. yes where the slope of land is more, the gradient is more. gradient मतलब ढाल, जहाँ लैंड का ढाल ज्यादा होता है, जहाँ स्लोप ज्यादा होता है वहां पर गली इरोजन ज्यादा होता है। जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो कि तुम्हारा ये गली इरोजन का एक पिक्चर दिया हुआ है ना। Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. ये जैसे स्लोपी लैंड है ना, ढाल जो है वो इस तरफ से इस तरफ है ढाल, तो यहाँ पानी बहते हुए ऐसे डीप चैनल बना लेती है।
बहुत सारे ऐसे डीप चैनल बन जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? गली इरोजन कहते हैं. Where there are many gullies developed due to erosion of water, then it is known as badland. Lot of gully formation makes the land badland. Badland means the land becomes unfit for irrigation and any other use. So it is termed as badland. जहाँ ज़्यादा गली को क्या कहते हैं? Badland कहते हैं. And the best example in India is Chambal Basin. And Chambal Basin is also called as ravines. Ravine. ठीक है ना? ये याद रहेगा. ये 1 mark question में आता है कि ravines कहाँ पर है, तो क्या लिखोगे? In the Chambal Basin. Just Chambal Basin. And in the Chambal Basin, badlands are known as ravines. Ravine. ठीक है? Badland भी वही है, ravine भी वही है. चंबल बेसिन में इसको क्या कहते हैं? ravines कहते हैं. Now come to the next column. When water, sometimes the water flows as a sheet over a large area down a slope, है ना? अगर slope gentle है ना, और vast area है, तो पूरे एरिया में एक साथ अपर लेयर सॉइल का जो है वो इरोड होता जाता है, तो इसको शीट इरोजन कहते हैं. तो शीट इरोजन इज कॉमन in a vast area which is having a gentle slope. बड़े एरिया में, ब्रॉड एरिया में जब स्लोप जेंटल होता है तो वहाँ पे ये गली इरोजन नहीं होगा, वहाँ क्या होगा? शीट इरोजन होगा. शीट इरोजन means washing away of the top layer of the soil in a vast area is known as sheet erosion, right? So sheet erosion is more common in the plain land where slope is little or slope is gentle. Wind blows. Now see this about the arid areas. Wind blows loose soil off flat or sloping land known as wind erosion. तो फ्लैट एरिया में शीट इरोजन विंड भी करता है. तो फ्लैट एरियाज में जहाँ की एरिड एरिया है या सेमी एरिड एरियाज हैं, वहाँ पे विंड इरोजन होता है और वो भी एक ब्रॉड एरिया से अपर सॉइल लेयर को हटा ले जाता है विंड. तो ये लूज सॉइल होता है. लूज सॉइल इज ऑलवेज ब्लोन बाय द फोर्स ऑफ द विंड. सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग. देखो ये ह्यूमन एक्टिविटी में आ जाएगा. डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से सॉइल इरोजन होता है. तो अगर हम डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग करते हैं, मतलब प्लाविंग करने का तरीका सही नहीं है या इरिगेशन राइट मैनर में नहीं कर रहे हैं, तो भी सॉइल को लॉस होता है. प्लाविंग इन रॉन्ग वे अप एंड डाउन द स्लोप. समझ गए? ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब हाइट से नीचे की तरफ अगर हम स्लोप की तरफ हम प्लानिंग कर देते हैं तो क्या होगा? डीप चैनल्स बन जाएंगे, गली इरोजन बहुत होने लगेगा. तो डाउन द स्लोप कभी भी नहीं किया जाता है. स्लोप के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लाविंग करते हैं. फील्ड की प्लाविंग ग्रेडियंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं. ग्रेडियंट मतलब लैंड का ढाल. ढाल की ही डायरेक्शन अगर हम प्लाविंग कर देंगे तो क्या बनेगा? वो डीप चैनल्स बन जाएंगे और चैनल से और भी ज्यादा सॉइल का इरोजन होता चला जाएगा. तो वी हैव टू डू द प्लाविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लैंड, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्लोप. The plowing in the wrong way up and down the slope form channels for quick flow of water leading to soil erosion, right? So you have studied in detail about all the new natural factors and human activities which are the major or chief causes of soil erosion. Now the most important part of your topic is the conservation of soil. If the soil is eroded away in this manner, what steps should be taken for conservation of soil or protection of soil? I had sent you a notes on this answer also. So from Yes, this ma'am. last paragraph, you write a question. What are the various methods? What are the
various methods for conservation of soil. What are the various methods for conservation of soil? So see here, the first point. You will write the answer. Following are the methods to protect or conserve the soil. Point number 1. This first line of this paragraph is point number 1. Plowing along the contour line can decelerate the flow of water down the slope. ठीक है, ये पहला हो गया. हाँ, अब इसको हम तुम्हें एक मिनट रुक जाओ. I'm trying to show a picture. Yes, see this. ये देखो, है ना, एक कंटूर प्लाविंग का एक पिक्चर है, ठीक है ना. इसमें क्या है कि जैसे ये हिली एरिया है और हिली एरिया में स्लोप बहुत ज्यादा है ना. तो क्या करते हैं कि यहाँ पे स्लोप के डायरेक्शन में प्लाविंग नहीं करते हैं, ऐसे अप टू डाउन इस तरफ प्लाविंग कभी नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि अगर up side and towards the down way you do the plowing activity, then what will happen? Lot of gullies will be formed. So there will be lot of gully erosion. So we have to do plowing. We have to do plowing in the opposite direction of the flow, opposite direction of the slope, like this. So this is the picture of contour plowing. Are you seeing this? This is the picture of contour plowing. Okay? Yes. So let us come to the topic. Yes, ma'am. Next point. हाँ, तो एक पॉइंट हो गया. अब दूसरा पॉइंट देखो. The steps can be cut out on the slopes making terraces. है ना, हिल स्लोप पे टेरेसेस बना लेते हैं और टेरेसेस के ऊपर एग्रीकल्चर करते हैं. ब्रॉड फ्लैट टेरेस बना के उसके ऊपर एग्रीकल्चर करते हैं. तो टेरेस के किनारे एम्बैंकमेंट भी कर देते हैं, मतलब घेर भी देते हैं और इस तरह से सॉइल को इरोजन होने से बचा लेते हैं. तो इसको ये सेकंड पॉइंट हो गया. स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस. टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट्स इरोजन. वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग. ये सेकंड पॉइंट हो गया. अब ये थर्ड पॉइंट देखो. लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स. एक फ्लैट फील्ड है जहां एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसको कई सारे स्ट्रिप्स बीच बीच में बना लेते हैं. एग्रीकल्चरल लैंड के बीच बीच में लंबे स्ट्रिप्स बना लेते हैं जिसमें ग्रास ग्रो कर देते हैं. द स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स. है ना, जैसे दोनों तरफ क्रॉप है तो बीच में एक ग्रास का स्ट्रिप लगा दिए. इससे क्या होगा कि जो भी सॉइल इरोजन होगा उसको वो ग्रास जो है वही चेक कर लेगा. सॉइल कहीं भी फ्लो होके फर्टाइल सॉइल इधर उधर वेस्ट नहीं होगा, वो सब उस फार्मलैंड के अंदर ही रहेगा. दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड. तो ये स्ट्रिप ऑफ ग्रासेस वाटर इरोजन में भी काम आता है कि सॉइल का जो वाटर इरोजन है वो भी नहीं हो सकता है. हाँ, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग इसी को कहते हैं कि क्रॉप्स भी लगे हुए हैं और बीच बीच में इलोंगेटेड ग्रास स्ट्रिप्स लगाए हुए हैं. अब देखो, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन अ सिमिलर वे. प्लांटिंग लाइन्स ऑफ शेल्टर, इसके लिए क्या नाम दिया गया है? शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन. शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन. अब तुम इमेजिन करो कि जैसे थार डेजर्ट है इंडिया का, राजस्थान में जो वेस्टर्न पार्ट है डेजर्ट, और वहां से अगर विंड ब्लो कर रहा है तो इधर यूपी के वेस्टर्न साइड तक डेजर्ट बढ़ सकता है. डेजर्टिफिकेशन इसको कहते हैं. स्प्रेड ऑफ डेजर्ट इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन. तो डेजर्ट को चेक करने के लिए विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये रोज ऑफ ट्रीज लगा लेते हैं और तब इससे क्या फायदा होता है कि विंड का स्पीड चेक होता है, वहां पे एक रुकावट होती है और इस तरह से वो डेजर्ट आगे नहीं बढ़ पाता है. शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन वेस्टर्न इंडिया में बहुत किया गया है. क्यों? क्योंकि वेस्ट की तरफ के डेजर्ट आगे की तरफ ना बढ़े, इसके लिए. इसी को कहते हैं शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन, है ना.
तो तुम शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन के ना ये देख सकते हो कोई पिक्चर्स। ये फाइल में है। हाँ तो ये देखो शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन कैसे होते हैं, रोज में लाइन में करते हैं। और इसके बाद क्या तुम्हारा ये है बताओ। ये देख रहे हो ना ये पिक्चर कि एक तरफ एग्रीकल्चर है हो रहा है और इधर लाइन से ट्रीज लगा दिए गए हैं, क्योंकि उसके दूसरे साइड से डेजर्ट का एक्सटेंशन इस तरफ बढ़े नहीं, इसके लिए ऐसे ट्रीज लाइन में लगा देते हैं। तो इसको कहते हैं शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन। ठीक है, फिर इसके बाद अगला पॉइंट देखो शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन के बाद। This breaks the planting lines of trees to create shelter belt works in similar way. Rows of such trees are called shelter belts. These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes. पहले भी पढ़े हो sand dune क्या है, बोलो। Hills of sand in the desert area is known as sand dunes. And sand dunes सैंड ड्यून्स ना अपनी जगह पर स्टैटिक नहीं होते हैं, वो विंड के फोर्स के साथ साथ आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं और इसी से डेजर्ट भी आगे बढ़ता है। तो सैंड ड्यून्स को अपनी जगह पे रोकने के लिए या डेजर्टिफिकेशन को चेक करने के लिए वेस्टर्न इंडिया में ऐसे बहुत शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन किए गए हैं, है ना, इसी को कहते हैं शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन। तो कितने पॉइंट हो गए बताओ? 4 पॉइंट्स। 4 points. हाँ, इसको एक बार रिवाइज कर लो। पहला पॉइंट क्या है? Counter flowing. Jogging along the contour lines. Plowing along the contour lines can decelerate the flow of water down the slope. ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, steps can be cut out on the slopes making terraces. हिल स्लोप पे टेरेसेस बनाएंगे तो उससे भी सॉइल इरोजन चेक होता है। थर्ड पॉइंट, strips of grasses are left to grow between crops, so strip cropping conserves the soil. Planting lines of trees to create shelter in checking wind erosion, this helps in stabilizing sand dunes. इसके अलावा और भी तुम अगर एक पॉइंट और ऐड करना चाहो, जैसे ये 4 पॉइंट्स हो रहे हैं ना, अब एक पॉइंट और ऐड करना है, मान लो 5 पॉइंट्स लिखना है, तो फिफ्थ पॉइंट में तुम अपने मन से ये लिखो कि वी शुड हैव अ कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग and we should manage the or do the land management program so that soil can be conserved, right? We should do afforestation program, we should stop overgrazing, and we should avoid the mining, excess mining, etc. तो ये लास्ट पॉइंट में ना कुछ ये सारे मिसलेनियस पॉइंट्स मिला करके तुम लिख सकते हो। तो आपका कितना हो गया? 5 पॉइंट हो गया। तो अब टाइम खत्म हो रहा है, जरा फिफ्थ पॉइंट लिख लो। तो फिफ्थ पॉइंट यहीं पे लिख लो पेंसिल से। We should encourage afforestation program and discourage overgrazing, mining, etc. फिफ्थ पॉइंट, हाँ बोल रहे हैं, लिखो। We should encourage afforestation programs and discourage overgrazing, mining, etc. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, ये वाला जो अभी लास्ट में लिखाया गया, वो हाफ ईयरली एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में भी आया करता है, क्योंकि ये ना
बहुत वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की तरह है, तो एग्जाम में बहुत आता है। तो सॉइल इरोजन, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन एंड मेजर्स टू कंजर्व सॉइल इरोजन, ये दोनों कर लेना। दोनों लिखा हुआ है तुम्हारे पास? Yes, ma'am. हाँ, तो हर्षित वो सेंड कर लेना जो तुम भेजते हो, है ना। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट में 38 ही थे क्या आज? 39. 39, हाँ, एक कम हो गया और कल तो 40 था। और कुछ बोलो, पूछो। अब टाइम है, 1 ही मिनट बच रहा है। नोट्स बनाना, उसको पढ़ना, याद करना, अपनी कॉपी को मेंटेन करना, ये सब करते चलो, है ना। इसमें देखो तुम लोग को एक्स्ट्रा टाइम ये सब मिल रहा है, रिवीजन भी हो रहा है। तो इसमें अब ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसकी कॉपी रेडी नहीं है। क्योंकि ये लेसन बहुत पहले भी पढ़ा चुके थे शुरुआत में, है ना, बिगनिंग ऑफ द में। अभी फिर रिवीजन भी हो रहा है, और उस समय भी नोट्स दिए थे, और कल भी सारा नोट्स भेज दिए हैं। पे हाँ, स्नैप पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है ना। तुम लोग एकदम एक्टिवली वो सब चीज देखो और लिखते चलो। हाँ।